اگر اس مضمون کو لے کے چلے تو پھر مضمون جو اصل ہے وہ رہ جائے گا. جی الحمدللہ رب العالمین. نمازی جنازہ من وجہ دعا ہے اور من وجہ یہ نماز ہے. نماز جنازہ بھی پہلے کسی نبی کی امت کے لیے نہیں تھا. مکی دور بھی نماز جنازہ سے خالی رہا. ہماری اماں جی سیدہ ام المومنین محسنہ اسلام والمسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات مبارکہ بھی مکی دور میں ہوئی. نماز جنازہ مشروع ہی نہیں تھا. جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت ہجرت مدینہ کے بعد جو صحابی سب سے پہلے فوت ہوا ان کا نام تھا حضرت سیدنا عثمان بن مظعون. یہ وہ شخص ہے جس کا سب سے پہلا اسلام میں جنازہ ہوا. یہ وہ شخص ہے جس کی سب سے پہلے قبر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں بنی، اور یہ وہ شخص ہے جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں کی، اور یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی قبر میں ہو خود سرکار دو عالم علیہ السلام لیٹ گئے تھے. یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس کی قبر شریف تعمیر کی گئی اور پھر فرمایا کہ تم سارے جا کے وہ پتھر اٹھا کے لاؤ تاکہ ہم یہاں نصب کر دیں. فائدہ کیا ہوگا؟ لیعلم قبر اخی ہے، ہمارے بھائی کی قبر کا نشان معلوم ہوتا رہے. یہ تھا ہمارے بھائی عثمان بن مسعود کی قبر. راوی کہتے ہیں حدیث کے کہ صحابہ چلے، 2 ہوں گے 3 ہوں گے 4 ہوں گے، انہوں نے زور لگایا، پتھر نے کہا نہیں میں تم سے اٹھنے والا تو تھا ہوں ہی نہیں. حضور مسکرا رہے تھے کہ بیچارے کھپ رہے ہیں. حضور خود گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور خود تشریف لے گئے. راوی کہتا ہے حضور نے اس طرح اپنے بازو کپڑے جو تھے نا طے کرنے شروع کر دیے، جس طرح کوئی بندہ کام کے لیے نا تیاری کرتا ہے اور کپڑا جی اپنے بازو طے کرتا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے ابھی وہ منظر نظر آ رہا ہے سرکار اپنا کپڑا اس طرح طے کر رہے تھے اور سرکار کے بازو کی روشنی چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ، چودھویں کے چاند سے بھی سرکار کے جسم سے نکلنے والی روشنی زیادہ تھی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں پھر سرکار تشریف لے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. اب طاقتوروں کا سردار اور رسول آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو 3-4 صحابیوں کے اجتماعی طاقت سے نہ اٹھ سکا سرکار اکیلے اٹھا کے قبر پہ لے آئے. سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہو، اکیلے اٹھا کے قبر پہ لے آئے اور قبر پہ سرکار نے اس طرح اس کو نصب کر دیا. حضرات جی بکار یہ چیزیں حضور کا صدقہ ہمیں ملی ہیں. بندہ جتنا گنہگار ہو مالک تو وہ خدا ہے. جس طرح ہمارے گنہگار ہونے میں کوئی شک، بولو بھائی، جس طرح ہمارے گنہگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس کے غفور الرحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بڑا ہی غفور الرحیم، بڑا ہی غفور. یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ساتر بھی ہے، ستار بھی ہے. تو آخر ہمیں کچھ پتہ ہی چل جائے کہ وہ گناہ کتنے معاف کر دیتا ہے. 100 میں سے 50 معاف کر دیتا ہے، 1000 میں سے 500 معاف کر دیتا ہے. چلو بھائی یہی ہے نا کہ 1000 گناہوں سے 900 معاف کر دے گا. ہمیں حضور بتاؤ تو صحیح.
फरमाया मेरा रब इतना गफूर रहीम है कि जमीन पे चलने वाले इंसान, एक एक इंसान इतने गुनाह करें, जमीन के फर्श से लेकर आसमान की बुलंदी तक ये सारा खला एक एक इंसान गुनाहों से भर दे, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बारगाह में आकर रो दे, मेरी बारगाह में आके सजदा रेल हो जाए और सच्चे 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 दिल से माफी मांगे। फरमाया मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देता हूं, उसके सारे गुनाह काफूर कर देता हूं। सुभान अल्लाह। अब मंजर अजीब बनता है, हम जरा गौर करें। नमाज जनाजा के मौका पर उस मुसलमान को दाएं बाएं या पीछे नहीं रखा जाता, दाएं बाएं या पीछे उस मुस्लिम को नहीं रखा जाता। हर नमाज में तमाम नमाजियों से, तमाम अहले ईमान से इमाम आगे होता है। नमाज जनाजा के वक्त खुदा की रहमत इस तरह बरस रही होती है, फरमाया इसको इमाम से भी आगे रखो, इसको अब इमाम से भी आगे रखो। ये ईमानदार है, इसके ईमान का नूर अब इसको कब्र में काम देगा, इसको कुरान मजीद की तिलावत की जो नेकी है इसकी कब्र को जगमगा देने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। ये जो सफर में, हजर में, तन्हाई में, मजलिस में, चलते फिरते, खुशी में, गम में, दिन हो या रात हो, गुर्बत हो या अमारत हो, मेरा ये नाम लेता रहा, मेरा जिक्र करता रहा, मेरी याद करता रहा, अब याद खुदा का दिया तो इसकी कब्र में जलेगा ना, रोशनी तो होगी ना। अंधेरा घर सुना था, शमाए ईमान लाया हूं। हजरात जी वकार, नमाज जनाजा के लिए जो सफ़े तरतीब दी जाती है, हम गुनहगार हैं, खताकार भी हैं, फिर इंसान हैं, हमारी मालूमात, हमारी निगाह की वुसअत बहुत कम है, हम बहुत कम देखते हैं, हम मोटे मोटे लोगों को देखते हैं, बारीक बंदा थोड़ा ही नजर आता है, लेकिन देखने वालों की आंखों ने क्या देखा, और सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया। फरमाया अहले ईमान नमाज जनाजा की जब सफ़े कायम होती है, तुम्हारे दाएं बाएं तुम्हारे पीछे भी अल्लाह के फरिश्तों की कितनी जमातें आकर अहले ईमान के नमाज जनाजा में और उसकी दुआए बख्शिश में शामिल हो गए। अल्लाह उसको बख्शने का इरादा रखता है या नहीं? नहीं रखता तो फरिश्ते भेजे क्यों? भला उसकी इजाजत के बगैर फरिश्ते आ सकते हैं? अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे पाक बंदो, मेरे पाक फरिश्तों, जल्दी जल्दी नमाज जनाजा में पहुंच जाओ। बस पलक झपकना तो बड़ी दूर की बात है, पलक झपकने की मुद्दत से पहले अगर तख्ते बिल्कीस आ सकता है तो वो फरिश्ते भी आसमान से जमीन पे नमाज जनाजा की सफों में खड़े होते हैं। या अल्लाह हम पहुंच गए, खड़े हो गए, अब हम क्या करें? फरमाया मेरे बंदे दुआ करेंगे तुम आमीन कहोगे, और फरमाया मेरा एक फरिश्ता, इसलिए हुक्म है कि जब इमाम नमाज में कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हुजूर फरमाते हैं कूलू आमीन, तुम आमीन कहो। जिसकी फरिश्ते भी उस वक्त आमीन कहते हैं और जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के मुआफक और मुताबिक हो गई, उसकी दुआ कबूल हो गई। इधर तुम अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहज्जिना व मय्यितिना व शाहिदिना, जो आ गए हैं, व गायबिना, जो नहीं आ सकते, नहीं आ सके, व ज़करिना व उनसाना, हमारे मर्दों में थोड़े कुछ मर्द आ गए हैं, कुछ नहीं आ सकते और औरतें आई ही नहीं है, उनको नमाज़े जनाजा में मसला। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहज्जिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं,
व कबीरना, हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं। ये सारा जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते बाआवाज़े बुलंद कहते हैं आमीन। इधर आमीन और दुआएं हो रही है, अहले ईमान जी सफ आरा होकर दुआएं कर रहे हैं, और उधर फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, और उनकी आमीन हमारे कानों के पर्दों तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन अर्श इलाही से टकरा जाती है। आसमान के कबूलियत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसे मुमकिन है, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरे कलमा पढ़ने वाले का इस 4 तकबीरों से जनाजा पढ़ा जाए और सफ आरा होकर ये दुआएं की जाएं, अल्लाह गफूर भी हो, गफ्फार भी हो, रहीम भी हो, रहमान भी हो, सत्तार भी हो, शकूर और शाकिर भी हो, और मेरे उम्मती मेरा गायबाना कलमा पढ़ने वाले के लिए अल्लाह मग़फ़िरत ना फरमाए, ये हो ही नहीं सकता। एक हदीस पाक, माशाल्लाह टाइम हो गया, एक हदीस पाक सुना। बारिश बरस रही थी, मेरी आपकी आदत है कि बारिश बरसे तो दौड़ भागम भाग, लेकिन आका अलैहिस्सलाम क्या करते थे, हुजूर का तरीका मुबारक था, जब बारिश शुरू होती थी तो कमरे से बाहर आकर बराह रास्त बारिश के कतरे लेकर दोनों मुबारक नबूवत के हाथों पर चेहराए रिसालत पर मल लेते थे और कहते सुभान अल्लाह, अभी ये तरो ताजा, अभी अभी ये मेरे खुदा की तरफ से आ रही। तो बारिश का मौका था, सरकार खड़े मुस्करा रहे थे। सरकार का खामोश होना हिकमत से खाली नहीं, सरकार का मुस्कराना भी तो हिकमत से खाली नहीं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुस्कराने का मतलब वजह? फरमाया मैं सोच रहा हूं मेरी उम्मत के लोग इस बारिश की मानंद ही हैं। मैं सोच रहा हूं कि जिम्मेदार क्या हिसाब लगाएगा कि फसल में जो बारिश हुई है बड़ी मुद्दत के बाद, ये बारिश का पहला हिस्सा जमीन के लिए, फसल के लिए, बाग के लिए ज्यादा मुफीद है, फिर थम जाती है ना, फिर शुरू हो जाती है बारिश, तो बारिश का दरमियानी हिस्सा मेरे बाग के लिए, ज़राअत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, या फिर आखिर में जो गरजती है और बरसती है उस आखिरी बारिश के हिस्से का ज्यादा फायदा है। जिस तरह वो जिम्मेदार अपने बाग को, जमीन को और खुदा के आसमान को बरसती बारिश में देखता है, मैं भी देख रहा हूं मेरी उम्मत के पहले लोग ज्यादा बेहतर हैं। वो कौन है? वो असहाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो आले मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ज्यादा मुफीद है या इनके बाद के लोग? वो कौन है? वो ताबीईन है, वो अतबा ताबीईन है, वो इमाम मालिक हैं, इमाम आजम अबू हनीफा है, वो इमाम शाफी है, वो इमाम अहमद बिन हंबल है, वो इमाम तिरमिज़ी है, वो अबू दाऊद और नसाई है, वो इमाम है इल्म हदीस के कि जिन्होंने जिंदगी में इल्म हदीस की खिदमत करने के बजाय के बगैर कोई काम किया ही नहीं है, जिनको अल्लाह ने भेजा ही इल्म हदीस की तदबीर के लिए था, जिनको दीन कायम करने के लिए अल्लाह ने भेजा था। और फिर बारिश का आखिरी हिस्सा यानी उम्मत के आखिरी लोग, वो कौन है? वो हम हैं। हमें, हम गुनहगारों को सरकार ने याद किया। और मिशकात शरीफ किताब का नाम तो आपने जिंदगी में बारहा सुना होगा। इसके आखिरी सफ़े पर आखिरी अहादीस में से एक हदीस है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमर्रानी व आमना बी, मुबारक हो, खुशखबरी हो, मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मेरी जियारत की और मुझ पर ईमान ले आए। असहाबे रसूल, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, वो वफूद आए, मुसलमान हुए, सलमान फारस से आ गए, हबीब यमन से आ गए, सुहैब रोम से आ गए, बिलाल हबश से आ गए, जो जिन्होंने मुझे देखा, तूबा लिमर्रानी, जिन्होंने मुझे देखा, व आमन भी,
ان کو میں محمد کی طرف سے مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے۔ پھر کیا فرمایا؟ سنیے سنیے ہمارے آقا کو ہم گناہگاروں سے کتنا پیار ہے، اور فرمایا ان کو تو ایک مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور میں محمد ان کو 7 مبارکیں دیتا ہوں جنہوں نے میرا زمانہ تو نہیں دیکھا، میری زیارت تو نہیں کی، بغیر دیکھے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، 7 مرتبہ میں محمد ان کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا، میرا ظاہری مکی مدنی دور نہیں دیکھا جی۔ وَآمَنَ بِي، دن دیکھے فدا ہے ہر کوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔